हेलो स्टूडेंट्स, आई होप जो पहले 2 लेक्चर थे लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे आपको हेल्प मिला रहेगा। तो आज मैं आपको एपी के बारे में बता रही हूँ। एपी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, नाउ अब इसमें किस टाइप के सम्स होते हैं और क्या होता है एपी। पहली बात तो पहला क्वेश्चन की वेदर इट इज एन एपी और नॉट। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस अगर आपको दिया है तो वो एपी है या नहीं है, वो डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? दैट डिपेंड ऑन द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हल्का सा पहले इंट्रोडक्शन एक्चुअली एपी होता क्या है और सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस कैन बी लाइक 1 2 3 4 5। दिस इज द सीक्वेंस 1 3 5 7 9. This is also sequence 1 4 9 16 25. This is also sequence. These all three are the sequence. Sequence का कोई ऐसा रूल नहीं होता कि ये sequence है कि नहीं. These are the sequence. They are following some particular rule. Okay, या तो फिर 1 2 4 8 16 32. This is also following some rule. What is this? These are the double of previous term. 1's double is 2, 2's double is 4, 4 into 2 8, 8 to the 16, 16 to the 32. So this is a sequence. Okay, and here also these are the squares. Square of the natural number 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square. And these are also there the difference of 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. This is plus 1 plus 1 plus 1. These all four are the sequence, but these all four are not AP. ठीक है, what is the condition of AP? AP means when the common difference between any two consecutive terms is constant, that sequence is known as AP. Okay, but before that, if any sequence is written like 2 4 6 8 and like this, so on, here this is known as first term, this is second term, third term, fourth term, and denoted by T1. 1 stands for first, T stands for term, and this is T2, 6 is T3, and 8 is T4. Okay, another name for T1 or generally that we are using in the formulas, that is A. A is equals to T1. So T1 लिखो ये उसकी जगह पे A, लेकिन फॉर्मूला जब हम लिखते हैं AP का, then we are using A. We are not using T1 except SN का फॉर्मूला. I will let you know when SN I will calculate. ठीक है, अभी AP होता क्या है? When, what I told the definition is when common difference. Now the question is what is common difference? Common difference is denoted by D, small d, not capital D, small d. And this is what? This is the difference between these two terms, like 2 and 4, the difference is of 2, right? 4 and 6, difference is of 2, 6 and 8, difference is of 2. But how to find out common difference? Common difference you can find as next term minus previous term. T2 minus T1, is it 4 minus 2 is 1? or T3 minus T2? T3 क्या है? 6, 6 minus 4 2, or maybe T4 minus T3, 8 minus 6, that is also 2. So whenever common difference is same, but the word that you have to use is not same. You have to use the word in exam, for board exam, you have to use the word as constant. When the common difference between any two consecutive terms is constant, then that is AP. अगर यही क्वेश्चन आपके पास है and they are asking you whether this is an AP or not, अगर ऐसा क्वेश्चन है, so how you have to attempt that question? Firstly, you have to write down the value. T1 is 2, T2 is 4, T3 6, T4 8. Okay, then find out D. T2 minus T1. In one line you are doing, that is also okay. Is it 2?
Then once more 3 minus 2, T3 minus T2, is it 6 minus 4, is it 2? Then what else can I write? T4 minus T3, 8 minus 6, is it 2? Now see, everywhere in all the three difference is 2. Now this whatever wording I am going to write down, you have to bahar take or understand it whatever, but in this manner only required in the board exam, as the common difference. Now at the place of common difference you can use like D also. Okay, between, अब इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है. एक तो ये any two consecutive terms is constant. Okay, therefore it's an AP. अगर ये सेम नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता, जस्ट यू हैव टू ऐड हियर इज नॉट कांस्टेंट, इट्स नॉट AP. अब यहाँ पे जो दो पर्टिकुलर थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स एंड कांस्टेंट, दीज टू वर्ड्स शुड बी देयर कंपल्सरी. अगर आप सिर्फ ऐसे लिखते हो डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स, सॉरी डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट सही है, लेकिन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज इंपॉर्टेंट. व्हाट डज इट मीन कि हर एक जगह पे होना ही चाहिए. अभी अगर यहाँ पे 2 था और यहाँ पे अगर कॉमन डिफरेंस 3 होता तो ये AP नहीं था ना. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू मेंशन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स. कंसेक्यूटिव मींस वन आफ्टर अनदर इन द कंटिन्यूएशन. क्लियर? तो यहाँ पे 1 मार्क का सम कैसे होता है आपके पास कि वेदर इट्स एन AP और नॉट. गॉट इट? क्लियर? देन द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द T और व्हाट इज TN. देखिए आपने ये लिखा यहाँ पे 2, 4, 6, 8. अभी लास्ट में समझो मैंने लिखा 100. ठीक है, यहाँ तक तो अभी मैंने बताया ये TN है तो होगा ही, सॉरी ये AP है तो ये AP होगा ही. नाउ अब ये 100 टर्म है, 100 इज एट विच प्लेस. जैसे 2 इज एट फर्स्ट प्लेस, दैट मीन्स इट इज T1. इट इज 2 टू सेकेंड प्लेस क्या है 4. तो 100 कौन से प्लेस पे है? अगर ऐसा क्वेश्चन होता है 100 कौन से प्लेस पे है तो मतलब आपको क्या फाइंड आउट. अभी इसमें देखिए A क्या है 2, B क्या है 2, ये 100 क्या है 100 is TN here. Means I don't know which term is this. ये 50th टर्म है या 51st टर्म है या 52nd टर्म है, we don't know. ठीक है, तो जब वर्ड प्रॉब्लम्स में ऐसे समझ आता ना दैट हाउ मेनी सीट्स विल बी इन द ऑडिटोरियम और हाउ मेनी ट्रीज इन दैट पर्टिकुलर रो, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट TN. TN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, N नहीं. और टोटल हाउ मेनी रोज आर देयर इन दैट ऑडिटोरियम, टोटल नंबर ऑफ सीट, तो दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट N. ठीक है, अभी यहाँ पे TN है आपके पास 100. ठीक है, अब ये सम करने से पहले जस्ट फॉर्मूला. T1 आपके पास क्या है 2. T2 क्या होगा 2 प्लस 2 इज इट 4. ये एक सिंपल वे में जो सीक्वेंस में जो इनिशियल लेवल पे सीखते हैं जब ये वैसे है. T3 क्या होगा 4 में वापिस 2 ऐड करेंगे तो 6 होगा. T4 क्या होगा 6 प्लस 2 8. अगर आपको यहाँ पे T15 निकालना है तो क्या आप ऐसे ऐड करते जाओगे? नहीं. ठीक है, नाउ हाउ दिस फॉर्मूला केम इनटू existence I am telling you. This is A. अब ये A है ना A, तो ये क्या है A प्लस D. इज इट? अभी ये क्या था 4, ये क्या था A प्लस D. A
प्लस डी, मतलब ये 4 है और वापिस प्लस क्या किया है डी, तो ये क्या हो गया आपके पास a प्लस 2d। सेम वे 6 किसकी वैल्यू है a प्लस 2d, तो 6 की जगह पे क्या लिख सकती हूँ मैं a प्लस 2d। अभी वापिस ये d ऐड किया उसमें, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं a प्लस, अब जरा इसमें ध्यान से देखो, अगर ये t 2 है तो क्या है a प्लस डी, a सब में कॉमन है, a चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ चेंज कहाँ पे हो रहा है d के साथ में जो कोफिशिएंट है वो, ये क्या है t3, तो a प्लस हाउ मेनी डीज 2 डीज, इन t4 a प्लस हाउ मेनी डीज 3 डीज, दैट मीन्स one number less than this, correct? So if I have to write down the formula to find out Tn, is it a plus one number less, means n minus 1 into d, ठीक है। अभी सिंपली कभी भी जब आपको सम सॉल्व करना है, ऑफ कोर्स आपको फॉर्मूला तो लिखना ही लिखना है, हर एक क्वेश्चन में किसी भी चैप्टर का रहे कोई भी सम रहे, आपको फॉर्मूला इज मस्ट, फॉर्मूला तो लिखना ही लिखना है, कैसे भी फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। अभी आप ऐसे भी कर सकते हो, समझो आपको T20 फाइंड आउट करना है, तो T20 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 1 नंबर लेस देन 20 19, a प्लस 19d, ठीक है। अगर वो T100 है सो a प्लस 99d। Why I am telling you this thing, you know, because for 1 mark such kind of sums are there, and what kind of sum are there किए रहेंगे। अभी प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था, याद आया कुछ सम, देखो अगर T18 माइनस T13 इज इक्वल्स टू 6 या 7 जो भी है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ D। ना आपके पास a का वैल्यू है, ना आपके पास एक पर्टिकुलर टर्म का वैल्यू है, सिर्फ दिया है T18 टर्म में से अगर आप 13 टर्म माइनस करते हो तो आंसर 6 आता है। तो D क्या है, अब देखो T18 क्या लिख सकते हैं a प्लस 17d, T13 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 12d, करेक्ट। नाउ T18 मतलब a प्लस 17d, देन माइनस है यहाँ पे T13 क्या है, और ये बाइनोमियल है, अगर बाइनोमियल है सो आई हैव टू कीप दैट इन ब्रैकेट, करेक्ट, इक्वल्स टू 6, जस्ट ओपन द ब्रैकेट, a प्लस 17d माइनस a माइनस 12d इक्वल्स टू, इज इट कैंसल, इज इट 5d इक्वल्स टू, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन रैंडमली लिया था तो एग्जैक्टली आंसर नहीं आ रहा है, मींस फ्रैक्शन, लेकिन b की वैल्यू फ्रैक्शन हो सकती है, यहाँ पे सिर्फ किसकी वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकती, एनी आइडिया, a कैन बी फ्रैक्शन, b कैन बी फ्रैक्शन, n कैन नॉट बी फ्रैक्शन। n का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट और सेकेंड टर्म बोल सकते हो आप, 1.5 टर्म कैसे, फर्स्ट और सेकेंड टर्म के बीच में क्या आएगा, कुछ नहीं, 3/4 नहीं ले सकते, 1/4 नहीं ले सकते, सिर्फ n की वैल्यू नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव नॉट, दैट शुड नॉट बी द फ्रैक्शन, क्लियर। तो अभी अगर एक सम उसने आपको दिया है, लाइक यही सम, अगर मैं इजी में यही सम ले लूं, ये सीक्वेंस है, वो आपको बोल रहा है कि ये एपी है, अभी इस सीक्वेंस में 61 आता है क्या, इज 61 इज द टर्म ऑफ दिस एपी, ऐसा क्वेश्चन है, आपको नहीं पता, ठीक है। स्मॉलर नंबर्स है, आपको पता है 2 का डिफरेंस है, ऑल नंबर्स आर द इवन नंबर, सो दिस इज ऑड नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन ठीक है अगर 2 का डिफरेंस नहीं होता, कुछ और सम होता, तो भी आपको नहीं पता कि वो नंबर उसमें, अगर 3 डिजिट नंबर होता तो शायद नहीं पता रहेगा, अगर ऑड और इवन का केस छोड़ दो तो, ठीक है। तो ऐसे सम में आप क्या करोगे, आपको Tn का फॉर्मूला लगाना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn क्या है यहाँ पे 61, फाइंड आउट करते हैं, अगर आ रहा है तो कहाँ पे है, ठीक है। a है हमारे पास 2, n we don't have,
D is also correct. Can I shift this to this side? 61 minus 2. Is it n minus 1 into 2? Right? 59 equals to n minus 1 into 2. Now, n minus 1, is it 59 by 2? लेकिन ये n minus 1 की वैल्यू, n की वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा समा दो तो आपको वो पूरा n की ही वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है। इवन यहाँ से भी आपको आइडिया हो गया कि ये फ्रैक्शन में है, बट स्टिल यू कैन नॉट लीव दिस क्वेश्चन। देन इट इज देयर लाइक दिस, n equals to 59 by 2 plus 1, n will be, is it 61 by 2? So n or n cannot be fraction. Okay, अगर ये fraction है so 61 does not exist in this AP. Clear है? ठीक है ना। चलो A and D, अभी एक आप इसमें आपके पास इसमें सम्स आते हैं कि जैसे हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 4, जो भी है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर दैट ऑल्सो कैन बी। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है आपके, 4 डिजिट नंबर भी ले सकता है, ठीक है। ये टाइप के सम शायद आपने प्रैक्टिस किए रहेंगे, लेकिन अभी मैं होल सम नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको बता रही हूँ कैसे होगा। अगर उसने पूछा आपको हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4, सो फर्स्टली यू हैव टू राइट डाउन 3 डिजिट नंबर्स। पहले आपको इसका सीक्वेंस लिखना है। 3 डिजिट नंबर्स क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक दिस एंड देन टिल 999. Firstly you have to write down this sequence, then you have to write down 3 digit numbers divisible by whatever the question. Suppose 4, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, 100. 100 is divisible by 4. Yes. 4, 108, 112 and so on. Correct. अभी लास्ट नंबर इज 999 which is not divisible by 4. अच्छा, easily how can you get to know, how you get to know that this number is divisible by 4 or not? How can you just see the last 2 digits? Last 2 digits. If last 2 digits are divisible by 4, that means that full number is divisible by 4. And in the last digit, if only 0 zeros are there, that will also divisible. Clear? Now 999 means 99 is there at the end, not divisible by 4. Come back, because ahead we cannot go, because after that become 1000, which is not 3 digit number. Okay, 998, 98 divisible by 4? No. 97? No. 96? Yes. So that means last number will be 996. Here you have to mention these things. A is 100. अभी D आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिविजिबल बाय 4 का जब सीक्वेंस लिखोगे तो डिफरेंस 4 का ही होगा। अंडरस्टूड है, ठीक है। व्हाट इज 996? दिस इज TN 996. व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, हाउ मेनी, जैसा जब क्वेश्चन आएगा ना, हाउ मेनी थिंग्स आर देयर, हाउ मेनी, दैट मींस यू हैव टू फाइंड आउट n. क्लियर? And then again same as previous sum I did, you have to put the values in the formula and you will get the value of n. ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शनल कैसे केसेस आते हैं, समझो। क्वेश्चन चेंज, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर डिविजिबल बाय 5 लीविंग द रिमाइंडर 1। समझे? अभी 100 अगर है, ये एक नंबर है जो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 1 रिमाइंडर कब होगा, इसका जब नेक्स्ट नंबर को डिवाइड करोगे आप। समझे? 105 इज डिविजिबल बाय 5. यस, तो व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? सो दिस विल लीव द रिमाइंडर एज 1. सोचो जरा, होगा?
अगर लिविंग द रिमाइंडर 2, सो इट विल बी 102, 107, then after 110, 2 numbers ahead, 112. So the sequence will be in that manner. और वो सिर्फ 5 से नहीं, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 7 से भी हो सकता है. रिमाइंडर, हाउ मच इज द रिमाइंडर, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. समझे? तो आप सिंपल चीज क्या करना, उसमें कैसे आप उसको फाइंड आउट करना. फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द 3 डिजिट नंबर्स, राइट. तो आप रफ में लिखो या कैसे भी लिखो, आप पहले सीक्वेंस लिखो. अगर 4 से डिवाइड था तो ये सीक्वेंस थी हमारे पास. whenever we are dividing these numbers, the remainder will be 0. that's why they are divisible ना. correct. अभी अगर रिमाइंडर 1 है, in each and every term you have to just add 1 1. so first number will be 101, 105, 109 and so on. last number was 996. now last number will be 997. clear. अगर रिमाइंडर 2 होगा तो 102, 106, 110 and so on. क्लियर. तो ये चीज भी ध्यान में रखना. क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, रिमाइंडर कितना है, हैवी के नहीं. डायरेक्ट डिविजिबल तो टेंशन ही नहीं है. रिमाइंडर है तो कितना है, जितना भी रिमाइंडर है दैट मच यू हैव टू ऐड इन द एग्जैक्ट नंबर व्हिच आर डिविजिबल. गॉट इट? क्लियर है? ओके. नाउ एसएन पता है. एसएन के आपके पास 3 फॉर्मूलास यू कैन राइट डाउन. एसएन का मतलब क्या रहता है, सम ऑफ एन टर्म्स. सम ऑफ एन टर्म्स. ओके, मीन्स अभी ये टर्म्स थी. Sn is always equals to T, sorry, S1. One second. S1 is equals to T1 and that is equals to A. मतलब A क्या है, फर्स्ट टर्म. T1 क्या है, फर्स्ट टर्म. S1 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म ही एक ही टर्म है तो सम तो वही होगा. S2 is T1 plus T2. Or for this question, here for this question this will be 2 and this will be 2 plus 4 total. ठीक है. S3 क्या होगा, S3 will be T1 plus T2 plus T3 या फिर S2 plus T3. S2 पहले सम कर चुके ना, लेकिन ठीक है, इतनी कंफ्यूजन में मत जाइए. ये तीनों को ऐड कर सकते हैं. राइट. नाउ एसएन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास. एसएन का फॉर्मूला भी आपको ऑफकोर्स बाहर ही करना पड़ता है जनरली. तो एसएन इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू sum of n terms, where n is how many terms are there. A is of course first term, n is n and d is the common difference. अभी एक तो आप ये फॉर्मूला है, ठीक है. इसी से 2 फॉर्मूला इज डिफरेंट लेकिन लिखते 2 तरीके से हैं. वन इज, लेकिन पहले वो देखो ये है कैसे. एस एन को अब देखिए ये क्या है, ये 2a है. 2a को मैं लिख दूं a प्लस a, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैंने कोई चेंज थोड़ी करा कुछ भी. वैल्यू पहले भी 2a थी, अभी भी a प्लस a 2a ही है. ठीक है. प्लस n-1 इंटू d. अब देखिए ये टोटल क्या है, ये क्या है, is it Tn? means Sn equals to n/2. shall I write a plus Tn? लिख सकते हैं. लेकिन अगर यहाँ a लिख रहे हो तो यहाँ T1 अवॉइड करो. जस्ट राइट डाउन n/2 इंटू T1 प्लस Tn. दिस इज ऑल्सो वन फॉर्मूला. ये ठीक है. और मेनी टाइम्स जनरली बहुत कम यूज करते हैं Tn की जगह पे L.
मीन्स लास्ट टर्म। सेम फॉर्मूला बहुत बार लिखते हैं हम लोग, लेकिन और कहीं भी हम लोग टी एन की जगह पे एल यूज नहीं करते हैं, सिर्फ यहाँ पे कर सकते हैं। मेनी पर्सन्स आर यूजिंग दिस ऑल्सो, मीन्स मेनी वेयर वी आर यूजिंग दिस ऑल्सो। ए स्टैंड्स फॉर T1, T1 एंड ए आर सेम। Tn मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, एंड यूजिंग L फॉर द लास्ट टर्म। दिस ऑल्सो कैन बी डन। क्लियर? जनरली ये चलता है या तो ये, लेकिन ये दोनों फॉर्मूले किस केस में चलते हैं, जब आपके पास लास्ट टर्म की वैल्यू है। अगर आपके पास लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं है तो फिर आपके पास इसके अलावा दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर लास्ट टर्म दिया है तो इजिली यू कैन जस्ट पुट द वैल्यू फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म एंड ओवर। गॉट इट? अभी वही सम जो मैंने अभी बोला था, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर डिविजिबल बाय 4। 100 से स्टार्ट किया था, उसका आंसर कुछ तो 225 आता है, शायद 225 आता है। टर्म्स आप सीक्वेंस आपके पास कैसी थी, 100, 104, 108, 996, ठीक है। A is 100, B is 4 and Tn is 996. Whenever you are applying this formula, you will get the value of n is 225. ठीक है? By putting the values in this formula, you will get n is equals to 225. Now the question was, means suppose two questions were merged together. First is how many 3-digit number are there divisible by 4, and what is the sum of that terms, or what is the sum of 3-digit number divisible by 4. तो मतलब कि जितनी भी टर्म्स है वो सबका सम कितना है। नाउ मीन्स आई हैव टू यूज Tn फॉर्मूला से Sn ऑल्सो। सम वर्ड आ गया ना, सम मतलब Sn, या टोटल या ऑल टुगेदर, ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, जब स्मॉलर स्टैंडर्ड में से वही होता है ना, कभी प्लस करना कभी माइनस करना कुछ पता नहीं होता था, बस 2-4 वर्ड दिमाग में। टोटल लिखा है मतलब प्लस करना है, ऐड करना है। सम लिखा है मतलब ऐड करना है, ऑल टुगेदर लिखा है मतलब ऐड करना है, यही होता है ना। अभी भी रखो दिमाग में, बचपना तो कभी नहीं जाता था, ठीक है। Sn अभी यहाँ पे आप कॉस फॉर्मूला, अभी यहाँ पे जरूरी नहीं आप 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज करो, आप यहाँ पे T1 प्लस Tn भी यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है। हर एक सम में लास्ट टर्म हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, और अगर है तो वो आपको इजी पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे T1 प्लस Tn। चलिए क्या आएगा, S 225 अपॉन 2 इंटू इज इट 100 प्लस 996, 225 बाय 2 इंटू 1096। Now easily you can make it cancel and then just multiply these two and the answer will be there. तो आपको 2a plus n minus 1 इंटू करने की जरूरत ही नहीं। समझ में आया? समझा? और कुछ डाउट है? और एक और चीज, कंसेक्यूटिव टर्म्स, वर्ड प्रॉब्लम्स, जहां पे आपको खुद से अज्यूम करना है। होता है ना, एक करगिल वाला समय आपके पास, करगिल वाला समय, टेम्परेचर ऑफ द करगिल, और 1-2 समय, और 5 टर्म्स आर देयर, उनका सम का स्क्वायर्स ये है, क्यूब्स का सम ऐसा है, ये सब होते हैं आपके पास। देखो जब आपको 3 टर्म्स एज्यूम करनी है, अगर क्वेश्चन में उसने दिए एनी 3 टर्म्स आर देयर, तो मिडल टर्म को कभी भी ए एज्यूम करो, इसमें a प्लस बी, और एक इधर ले लो a माइनस डी। तो ये आपके पास 3 टर्म्स आ गए। समझ में आया? अगर आपको 4 टर्म्स एज्यूम करनी है तो आप क्या करोगे, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, और इधर a माइनस 2d। ये आप 4 टर्म्स एज्यूम करोगे, ठीक है। सीक्वेंस से जाओगे तो आराम से होगा। अगर आपको 5 टर्म्स एज्यूम करनी है एक सम, करगिल वाला शायद 5 डेज का टेम्परेचर ही है, ठीक है। अभी ये क्या था ना, देखो 3 टर्म्स है अगर, तो 3 होता है तो 1 नंबर इज इन बिटवीन, 1 is here and 1 is that side, clear?
So that whichever number is in between that I'm just taking as A. अब यहाँ पे भी अगर 5 terms हैं, so middle term I take in between term is A. So here it will be A plus D और इधर हो जाएगा A minus 3 terms हो गए. कितना चाहिए था? 5 चाहिए, तो एक इधर और एक इधर और, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? A plus 2D and here A minus. आया समझ में? And in this temperature it was Monday to Saturday. Monday to Saturday है कि Friday है? ऐसा कुछ है. Saturday 6 है. 6 है इसमें. हाँ तो A plus 3D एक साइड पे ऐड कर दो. ये सब में क्यों बता रही हूँ मैं ऐसा? Because ये सब में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे इज ऑलरेडी गिवन. अगर वेडनेसडे का टेम्परेचर दिया है तो मतलब आपको सीधी सीधी यहाँ से A की वैल्यू मिल जाएगी. अगर मैंने इसको A प्लस डी A माइनस डी कुछ अज्यूम किया तो मेरे को डायरेक्ट वन वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिलेगी. समझे? तो जब आप यहाँ पे वो 6 टर्म्स वाला कारगिल वाला सम करोगे तो आप यहाँ पे A प्लस 3D लो, तो ये जो टेम्परेचर है ये होगा आपका वेडनेसडे का. ठीक है? और अज्यूम करने से पहले ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारा अजम्पशन ये भले ही तुमने सही किया है लेकिन वो सही से लिखा भी रहना चाहिए. लेट द टेम्परेचर फ्रॉम Monday to Saturday be these 6 terms and in the last respectively compulsory. That shows that first represent Monday, second is of Tuesday, third is of Wednesday. अगर आप ऐसा प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं लिखते हो तो वो सही नहीं है. समझ में आया? क्लियर? और कुछ डाउट है? कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो.